Hello everyone, welcome. So in this video we will be looking at the symmetric matrices. इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम लोग। और हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं, राइट। एंड लेट सपोज करो कि उस ए की जगह पे अगर ये कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनलाइजेशन कैसा होगा, दैट वी आर गोइंग टू लुक, राइट। ओके, लेट्स लुक एट दिस साइमेट्रिक मैट्रिसेस। सो हम लोगों ने देखा है कि अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर है, सो आइगन वेक्टर आर दोज वेक्टर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन they are still in the same direction, right? So we have seen for a general matrix, right? Let's suppose करो कि इस A की जगह अब ये symmetric matrix है and these symmetric matrices are very important. You will see कि जो from the linear algebra point of view this is important, and also from the application point of view these symmetric matrices are very important, right? So the importance you will get to know when you will see the applications, right? So but what we are doing, we are studying these symmetric matrices, right? And you will go in different application, then you will get to know what's the benefit of having these symmetric matrices and what are the importance of these symmetric matrices, right? So let's suppose करो कि अब इस A की जगह मेरे पास if I have this matrix that is the symmetric matrix, and if we have the eigenvector of this matrix, symmetric matrix S, then it will give me this. So this transformation will give us the vector that will be in the same direction, right? And with the scaled version, and this scaled version is what we call the eigenvalue, this is scaling factor, and this is your eigenvector. So we want to study we want to look at the eigenvector and eigenvalue of this symmetric matrix S. So far we have seen कि these symmetric matrices, if they are real symmetric matrices, then in that case we will have the eigenvalue that are the real number. So जो भी साइमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे उनके जो भी आइगन वैल्यू होंगे वो रियल होंगे, राइट? ये मैंने अभी तक आपको प्रूव नहीं किया है, राइट? सो यू कैन रेफर द बुक फॉर द प्रूफ, बट यू कैन कीप एट एज अ फैक्ट कि जो साइमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उनके जो आइगन वैल्यू होंगे दैट विल बी रियल नंबर, राइट? एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि साइमेट्रिक मैट्रिसेस के अगर मान लो कि आपने आइगन वैल्यू कैलकुलेट किया, and if you are getting the distinct eigenvalue, that means कि lambda 1 is not equals to lambda 2 is equals to not 3, so all these three are distinct eigenvalue, then in that case you will have the three distinct eigenvector, and those eigenvector will be perpendicular, right? So if you take the dot product of these two eigenvector, that will lead to 0, or if you take the dot product between these two eigenvector, that will also lead to 0. So they are going to orthogonal to each other, right? When you have the distinct eigenvalue for the symmetric matrix, right? So I will prove this one कि अगर मेरे पास distinct eigenvalue है for symmetric matrix, then in that case you are guaranteed to be get the eigenvector that are going to be the orthogonal, right? Also मैंने ये एक पॉइंट पे आपको लास्ट दो वीडियोस में एम्फसाइज किया था कि what is the case when we have the repeated eigenvalue, right? So अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में मेरे पास रिपीटेड आइगन वैल्यू आ रहे हैं, लेट सपोज करो कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, लेट सपोज करो कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है वो इक्वल आ रहा है, मतलब कि दो आइगन वैल्यू सेम है, एंड दिस लैम्डा 3 इज डिफरेंट आइगन वैल्यू, राइट? देन in that case we will have the eigenvector that may not be orthogonal or that may not be perpendicular, right? So but what we can do, we can choose these eigenvalues such a way कि ये orthogonal होंगे to each other. So I will take an example with the symmetric matrix that will have the repeated eigenvalue, और हम लोग देखेंगे कि उनके आइगन वेक्टर्स जो हैं
right? For the same eigenvalue, those eigenvectors are not orthogonal. हाँ, अगर जैसे कि λ1 इज इक्वल टू λ2 और λ3 है, तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर आएगा, आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर्स जो भी आएगा, राइट, तो ये जो भी आइगन वेक्टर्स आया इनके क्रॉसपॉन्डिंग, तो ये आइगन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर तो होगा. क्यों? क्योंकि दिस λ3 इज डिफरेंट फ्रॉम दिस λ1 एंड λ2, right? But these two eigenvector may or may not be orthogonal, right? But we can choose these two eigenvectors such a way कि ये orthogonal हो, right? तो overall point क्या है ना कि for the symmetric matrices we can have always, or we can always choose the eigenvector that are perpendicular. This is very important point, right? So I will take an example. I will show this second proof कि अगर distinct है eigenvalue, then you will guaranteed to be get the orthogonal eigenvector. And I will take an example of this कि if you have the repeated eigenvalue for the symmetric matrices, then we can make a choice such a way कि आपका eigenvector जो है वो orthogonal हो, right? So let's look at this point too. कि कोई भी आपके पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका कोई एक आइगन वेक्टर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई आइगन वैल्यू टाइम्स दिस आइगन वेक्टर, राइट? सो दिस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग कोई आइगन वेक्टर है, राइट? एंड यू हैव अनदर आइगन वेक्टर, लेट सपोज करें कि वो y है और उसका आइगन वैल्यू जो है वो म्यू है, राइट? सो एंड और ये भी एज्यूम करो कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, दैट मीन्स कि लैम्डा और म्यू जो है वो इक्वल नहीं है, राइट? तो व्हाट आई वांट टू सी, सो आई वांट टू शो दैट क्या शो करना, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है देन दीज आइगन वेक्टर विल बी ऑर्थोगोनल. दैट मीन्स कि अगर हम मैं एक्स ट्रांसपोज वाई कैलकुलेट करूँ दैट शुड बी 0, ये मुझे शो करना है, राइट? तो वी कैन ईजिली सी दिस वन. सो लेट्स लुक एट दिस वन, राइट? सो अगर मैं एस, सो जस्ट टू शो यू कि हाँ मतलब एज ए फैक्ट आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हो, बट लेट मी शो इट टू यू. सो ये एस एक्स है, राइट? लेट्स टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस एंड times y, right? So this will be lambda times x, right? We can write like this. This is equal to lambda x transpose y, right? और किसी भी स्केलर का ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यू कैन टेक दिस स्केलर आउट, सो यू विल गेट दिस x ट्रांसपोज y, राइट? और सिमिलर सेम चीज़ को आप इस तरह से भी कर सकते हो. सो आप पहले क्या करो, अब ट्रांसपोज को ओपन कर दो, मतलब ट्रांसपोज ले लो इस पर. तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, सो ट्रांसपोज विल ओपन लाइक दिस, एक्स ट्रांसपोज एस ट्रांसपोज टाइम्स दिस वाई, राइट? अब देखो ये जो आपका है ये क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ना. तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ट्रांसपोज लोगे तो यू विल गेट दिस सेम मैट्रिक्स, राइट? सो वी कैन राइट लाइक दिस एक्स ट्रांसपोज एस वाई, राइट? एंड इफ यू सी दिस एस टाइम्स वाई, दैट इज म्यू टाइम्स वाई, राइट? सो दैट विल बी इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज म्यू टाइम्स वाई वेक्टर, राइट? आप म्यू को इधर कर सकते हो, राइट? दैट विल बी एक्स ट्रांसपोज वाई, राइट? सो फ्रॉम यहाँ से आप देखो तो ये क्या मिल रहा है आपको कि लैम्डा टाइम्स एक्स ट्रांसपोज वाई इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एक्स ट्रांसपोज वाई. क्योंकि देखो आपने सेम इक्वेशन को लिखा, सेम इक्वेशन को लिखा, दैट मीन्स कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि आप सेम इक्वेशन को इधर भी एक्सपेंड कर रहे हो, सेम इक्वेशन को इधर भी एक्सपेंड कर रहे हो, राइट? सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन ब्रिंग दिस टू लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स
lambda minus mu into x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू 0। और हमारा एजम्पन क्या था कि ये जो है इक्वल नहीं है, राइट। सो दिस कैन नॉट बी 0 सिंस लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू म्यू। सो ये हमारा एजम्पन था, राइट, कि दो आइगन वैल्यू इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि अगर ये 0 है, सॉरी, अगर ये 0 है दैट मीन्स कि इसको 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 नहीं है तो, क्योंकि दो मल्टीपल है, दो मल्टीपल का मल्टीप्लिकेशन 0 है, अगर ये 0 नहीं है तो ऑब्वियस है ये 0 इसको 0 होना पड़ेगा। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि x परपेंडिकुलर दिस y, राइट। सो x और y क्या था, आपका आइगन वेक्टर था, राइट। सो दीज टू आइगन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस पॉइंट नंबर 3 कि अगर हम लोगों के पास रिपीटेड आइगन वैल्यू है, इन दैट केस मे बी आइगन वेक्टर जो होगा वो ऑर्थोनॉर्मल ना हो, बट वी कैन चूज ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थोनॉर्मल या आप बोलो ऑर्थोगोनल, राइट। ऑर्थोगोनल वेक्टर को ही नॉर्मलाइज कर दोगे तो यू विल गेट द ऑर्थोनॉर्मल, राइट। सो with the repeated eigenvalue in symmetric matrices, we have the choice to choose the orthogonal eigenvectors, right? So let me take an example to show you this, right? So let me first take example. So maybe we can take this matrix. So we are going to prove this point 3, not prove, but we are going to see through the example, right? So let's take this matrix, symmetric matrix, maybe with the element that is 3 6 0 and 6 3 0 and 0 0 9. So if you see, this matrix is a symmetric matrix, right? तो अगर अब इसका बाय डेफिनेशन अगर मैं इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर ढूंढूं, तो आइगन वेक्टर ढूंढने का एक प्रोसीड्योर है। वी कैन लुक एट द definition also to find the eigenvector, right? So let me find one of the eigenvector for this matrix, because what I can see in this matrix कि इस matrix के columns को अगर हम add करेंगे तो you will get 9, 3 plus 6 plus 0 9, 6 plus 3 plus 0 will 9, 9 plus 0 plus 0 plus 9 will give you 9. That means कि if I can take this matrix X, and if I take each column, right, then I will get 9 times of this vector, right? So what I am saying, so how I have found this, so you do not have to go through the observation to find the eigenvectors, right? यहाँ पे मेरा मेन कंसर्न क्या है ना, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फॉर द रिपीटेड आइगन वैल्यूज you may have eigenvector that are not orthogonal, but in case of symmetric matrices we have the choice to make those non-orthogonal vectors to orthogonal vectors, right, in case of symmetric matrices, right? So you see, agar aap, so this vector is one of the eigenvector, right? So how we have found, we have gone through the definition of this eigenvector and we have found that this is one of the eigenvector, right? We can write, and this is the one of the eigenvalue, right? So you can proceed as usual, and you will find कि one of the eigenvalue you will get 9, right? And not only that, you will have the repeated eigenvalue. So I have already calculated the eigenvalue of this matrix. So you will get 9 9 and lambda 3 is equals to -3. देखो, तो ये आइगन वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो मेन कंसर्न नहीं है। मेन कंसर्न क्या है कि मेरे पास ये रिपीटेड आइगन वैल्यू है, राइट? सो इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, सो वन ऑफ द आइगन वेक्टर ये है, राइट? सो वी विल फाइंड अनदर आइगन वेक्टर, बट सो दिस आइगन वेक्टर आई हैव फाउंड फ्रॉम द डेफिनेशन, राइट? जो आपका यूजुअल वे, उससे भी हम लोग उसको फाइंड करके देखेंगे।
राइट। सो और ये जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं आप, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं कि दीज विल बी द आइगन वैल्यू। सो आप ऐड करो। सो 12 + 3 15, राइट। 9 + 9 इज 18 माइनस 3 विल बी 15, राइट। और फिर इसका डिटर्मिनेंट लो एंड इसको प्रोडक्ट करो, यू विल गेट द सेम थिंग, राइट। सो ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट से आप देख सकते हो कि दीज आर द आइगन वैल्यूज फॉर दिस मैट्रिक्स S, right? And we have these two repeated eigen values, right? And we have seen कि one of the eigenvector of corresponding to this eigenvalue 9 is this one. Now let me see कि what could be the other eigenvector corresponding to this eigenvalue 9, right? So maybe we for lambda is equals to lambda 1 is equals to 9, और 9 अगर आइगन वैल्यू है तो उसके लिए मुझे क्या देखना होगा, S माइनस लैम्डा आई, राइट। सो यहाँ पे लैम्डा कितना है, 9 है। सो व्हाट मैट्रिक्स यू विल गेट सो डायगोनल पोजीशन पे आपको क्या करना है, सिंपली डायगोनल पोजीशन पे 9 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यू विल गेट -6 6 0 6 3 माइनस 9 विल गिव यू -6 and 0 and 0 0 9 minus 9 will give you 0, right? So how we can proceed for the eigenvector? So अब मुझे क्या क्या करूँगा, मैं इस मैट्रिक्स का so for this equation I will find the solution, right, for this matrix equation. So what will be this x1, right? So that will give you the eigen vector corresponding to eigen value 9. So इस मैट्रिक्स में हम लोग एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर पिवट, राइट। सो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना स्पेशल सॉल्यूशन होगा फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। सो वी कैन प्रोसीड विद द एलिमिनेशन एंड वी कैन ट्रेस आउट कि कौन सा पिवट कॉलम है, कौन सा फ्री कॉलम है, राइट। सो व्हाट ऑपरेशन यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, सिंपली R1 + R2 को ऐड करके R2 पे रख दो, राइट। सो मैंने रो 1 में कुछ किया है, नहीं किया है। रो 2 की जगह पे मैंने क्या किया, रो 1 + रो 2 को ऐड करके रो 2 के जगह पे रख दिया। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0। रो 3 में मैंने कुछ नहीं किया है, राइट। सो यू सी यू विल हैव दिस वन पिवट, ओनली वन पिवट, राइट, एंड दीज 2 आर द फ्री कॉलम्स, राइट। सो दैट मीन्स कि इसके करस्पॉन्डिंग आपको कितने स्पेशल सॉल्यूशन होंगे, यू विल हैव द 2 स्पेशल सॉल्यूशन, right? So maybe you will get this first special solution that we call this x1, right? So देखो कौन कौन सा फ्री कॉलम्स है, दैट इज x2 एंड x3, राइट। दैट मीन्स कि हम लोग x3 को 1 चूज कर लेते हैं, x2 को 0 चूज कर लेते हैं। देन इन दैट केस यू कैन डू द बैक सब्सटीट्यूशन एंड यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट स्पेशल सॉल्यूशन। सेकेंड स्पेशल सॉल्यूशन क्या होगा कि आप इसको 1 ले लो, सेकेंड फ्री वेरिएबल को 1 ले लो, और जो अदर फ्री वेरिएबल्स है उसको 0 ले लो, एंड फिर आप इसको कितना चूज कर सकते हो, बैक सब्सटीट्यूशन करो, तो यू विल फाइंड यू कैन टेक दिस एज 1, राइट। सो अब देखो ये दोनों भी आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू 9, और ये भी एक आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू 9, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है ना कि देखो स्पेशल सॉल्यूशन विल बी द स्पैन ऑफ दिस x1 एंड x2, मतलब कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी स्पेशल सॉल्यूशन होगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट आई थिंक यू आर एग्री, बिकॉज ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है, डिटेल मैनर में देखा है कि ax इज इक्वल टू 0 को हम लोग जब सॉल्व करते हैं देन वी हैव दिस स्पेशल सॉल्यूशन, एंड इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी जो होगा इन दोनों वेक्टर का, दैट विल ऑल्सो बी अ स्पेशल सॉल्यूशन, राइट। तो अब यहाँ देखो ये दोनों आइगन वेक्टर्स है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 9, राइट। सो इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे ना वो भी आइगन वेक्टर होगा, right? So these two eigenvector are forming the eigen space, and उस eigen space से कोई भी वेक्टर पिक कर लो, that will be also qualify for the eigen
वेक्टर। अब जैसे कि इस पॉइंट को मुझे प्रूव करना है, कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ? ये देखो, यहाँ बाय डेफिनेशन से हम लोगों ने देखा कि ये वेक्टर जो है दैट इज ऑल्सो अ आइगन वेक्टर। सो यू ऐड दीज टू, मतलब कि इन दोनों वेक्टर का आप लीनियर कॉम्बिनेशन, और लीनियर कॉम्बिनेशन लेने का मतलब क्या है कि यू कैन ऐड दीज टू वेक्टर्स ऑल्सो, that is also one of the linear combination, right? So if you add these two vector, what you will get is 1 1 1, right? So you are getting this, and this is also a eigen vector, right? So either you can pick eigen vector as this one, or you can pick this one, or you can pick this one. कोई भी आइगन वेक्टर आप पिक कर सकते हो, बट आई वांट टू पिक दोज आइगन वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल, राइट? सो इफ यू सी what eigenvector I will pick. So I have the choice in case of symmetric matrices. I have the choice to pick the orthogonal vectors, orthogonal eigenvectors, right? So in that case I am going to pick these two eigenvectors. So अगर आप इन दोनों eigenvectors को पिक करोगे तो that will be orthonormal, ऑर्थोनॉर्मल बोलो या ऑर्थोगोनल बोलो, राइट? तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x1 ट्रांसपोज x2 विल गिव यू 0, राइट? तो ये था दो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 9, राइट? अब एक और आइगन वेक्टर है दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 -3, राइट? तो आप सिमिलर वे में प्रोसीड करो, यू विल फाइंड दैट you will get the eigenvector for lambda 3 is equals to -3, that will be so -1 and 1 and 0, right? You can check. And so मेन कंसर्न यहाँ कैलकुलेशन नहीं, मेन कंसर्न यही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये दिखाना कि आपके पास 3 आइगन वैल्यू है एंड दोज 3 आइगन वैल्यू आर परपेंडिकुलर। सो अगर आप देखो, अगर आप इस आइगन वैल्यू और इस आइगन वैल्यू और इस आइगन वैल्यू और इस आइगन वैल्यू को, सॉरी मैं आइगन वैल्यू बोल रहा हूँ, इस आइगन वेक्टर और इस आइगन वेक्टर को अगर आप सेलेक्ट किए रहते और इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो तो दैट आर नॉट ऑर्थोगोनल, बट आई हैव द चॉइस, right? So I can find the linear combination of these two, that will be still a eigenvector, so I can make choice of this eigenvector, right? Now I have the set of orthogonal eigenvectors. That means कि now I can put all these orthogonal eigenvector and I can have the matrix that we are calling as a eigenvector matrix, जो कि आप लोगों ने डायगोनलाइजेशन में देखा होगा, eigenvector matrix. So if we have this matrix A, कोई भी matrix A है, then we can, if it is diagonalizable, then हम लोग इसको matrix को लिख सकते हैं x times lambda times x inverse, right? Then here this x is a eigenvector matrix, right? Now अगर मेरे पास ये symmetric matrix है और what I am saying कि I can have or I can choose the orthogonal eigenvectors, that means कि I can replace this x to matrix Q, and we have seen कि matrix Q is orthogonal matrix that will contain the columns that are going to be the perpendicular to each other, right? और इसका खासियत क्या है कि Q inverse is equals to Q transpose. So we are getting rid of this inverse because now we can write this symmetric matrix as a Q lambda, that is the diagonal matrix. Now here instead of writing Q inverse we can take the Q transpose, because for orthogonal matrices we have Q transpose is equals to Q inverse, right? So you see this is where we wanted to get, right? That is the one point. And from this point we can also say कि जो symmetric matrices होंगे they are always going to be the diagonalizable, because we will have always the full set of eigenvalue, right? So I'm not going to talk much about this point, but symmetric matrices can always be diagonalized, right? So because we will have the always full set of eigenvalue. देखो यहाँ पे repeated eigenvalue है, सॉरी आइगन वेक्टर, वी विल हैव द फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर, यहाँ पे रिपीटेड आइगन वेक्टर है, राइट? बट स्टिल वी हैव द फुल सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स,
right? That means कि if I have the full set of eigenvector, that means कि I can diagonalize this symmetric matrix. So symmetric matrices are always diagonalizable. So we have seen all those 4 points, and I think you are convinced with all these 4 points now, right? So now next we will look okay for symmetric matrices. S we can have orthogonal eigenvector, राइट. सो जो अगर हम डायगोनलाइजेशन देखें किसका, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का, देन वी कैन राइट एस इज इक्वल्स टू क्यू लैम्डा क्यू ट्रांसपोज, राइट. क्योंकि ये क्यों हम लोग क्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दिस क्यू इज़ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे क्यू इन्वर्स होना चाहिए था, बट हम लोगों ने देखा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर ऑर्थोगोनल क्यू इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्यू ट्रांसपोज, राइट. So this is the diagonalization of this symmetric matrix, right. अब देखो इस चीज़ को जो है ना हम लोग इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ. सो बेसिकली इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स को है ना हम लोग सम ऑफ रैंक 1 मैट्रिसेस लिख सकते हैं. अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तब, राइट. सो यू कैन स्प्लिट दिस एस into some of the rank 1 matrices along different eigen direction. So let me first of all, so अगर ये Q होगा, राइट. सो ये Q मैट्रिक्स के पास ऑर्थो नॉर्मल, लेट सपोज करो कि हम लोग उसको नॉर्मलाइज कर दिए. सो दिस Q मैट्रिक्स विल हैव ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स, राइट. सो लेट सपोज करो कि इस Q के पास दिस जो भी आइगन वेक्टर्स है, दैट इज Q1, Q2, Q3, Qn, राइट. ऑल दीज आर आइगन वेक्टर एंड ऑर्थोनॉर्मल. इनका लेंथ 1 है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट. सो व्हाट विल बी दिस Q ट्रांसपोज, सो दैट वी कैन ईजिली टेक दिस Q1 ट्रांसपोज, Q2 ट्रांसपोज डॉट 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 Qn ट्रांसपोज, राइट. And now let's look at this one. So we can write this as, so we will have this matrix with Q1, Q2 as an eigenvector, orthonormal eigenvector, right. And this lambda will have diagonal, दिस बिग लैम्डा इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड डायगोनल एलिमेंट पे क्या होंगे, सारे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगे, राइट. एंड व्हाट विल बी दिस Q ट्रांसपोज, लेट मी मेक इट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Q ट्रांसपोज, दैट इज Q1 ट्रांसपोज, Q2 ट्रांसपोज एंड Qn ट्रांसपोज, राइट. सो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे देख सकते हो, ये सारे यहाँ पे ये 0 0 0 0 0, राइट. तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को अगर पहले मल्टीप्लाई करोगे तो इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे देख सकते हो, दिस मैट्रिक्स टाइम्स कॉलम्स देखो, राइट. दैट मीन्स कि हम अदर कॉलम को नहीं पकड़ रहे, सिर्फ एक कॉलम को पकड़ रहे हैं. दैट मीन्स कि इसका फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 टाइम्स Q1. सिमिलरली कंप्लीट मैट्रिक्स सेकेंड कॉलम, हम सिर्फ सेकेंड कॉलम को पकड़ रहे हैं और बाकी सारा कॉलम 0 ले रहे हैं, राइट. तो दैट विल बी लैम्डा 2 टाइम्स Q2. सिमिलरली वी विल हैव लैम्डा n टाइम्स Qn, राइट, टाइम्स दिस मैट्रिक्स Q1 ट्रांसपोज, Q2 ट्रांसपोज डॉट डॉट Qn ट्रांसपोज, राइट. अब इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे देख सकते हो, तो
इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम दिस फर्स्ट कॉलम टाइम्स दिस वन, तो बेसिकली हम लोग फोर्थ वे, जो चौथा वे देखे थे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, क्या देखे थे, कॉलम टाइम्स दिस। सो देखो ये कॉलम एक वेक्टर हो गया लैम्डा वन टाइम्स दिस क्यू वन ट्रांसपोज, सो इससे तुमको बड़ा सा मैट्रिक्स मिल जाएगा। प्लस फिर इस कॉलम को इस रो के साथ करो, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ करो, और सारे को जब तुम ऐड कर दोगे तो यू विल हैव द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो ये था फोर्थ वे ऑफ डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, कॉलम टाइम्स रो, राइट। सो यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपके पास रैंक वन मैट्रिसेस मिलता है, और तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा वन क्यू वन ट्रांसपोज प्लस लैम्डा टू क्यू टू ट्रांसपोज। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है सब तरह से आना चाहिए था, ताकि इंटरमीडिएट की चीज़ें जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है फोर्थ वे ऑफ डूइंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, देन यू कैन रेफर दैट वन। सो लैम्डा एन टाइम्स क्यू एन इंटू क्यू एन ट्रांसपोज। तो अब जो ये जितने भी मैट्रिसेस होंगे ना, ये सारे रैंक वन मैट्रिसेस होंगे, राइट। ये जितने भी मैट्रिसेस होंगे, और ये तो लैम्डा वन लैम्डा टू क्या है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। सो ओवरऑल पॉइंट क्या है ना कि ये एस जो है, इस मैट्रिक्स एस जो कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यू कैन स्प्लिट एस दिस साइमेट्रिक मैट्रिक्स इनटू सम ऑफ रैंक वन matrices along the different eigen direction. राइट, सो इसको एक और थ्योरम के नाम से जाना जाता है, दैट वी कॉल द स्पेक्ट्रल थ्योरम। सो नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ पता रहना चाहिए कि this can lead to this one, right? Okay, so now let's take an example. Okay, let's go through this example. So in this example we will have the 2 by 2 symmetric matrix, right? और इसके जो आइगन वैल्यू है that are the distinct eigen value, and what I want to see कि आप symmetric matrix को इस फॉर्म में लिख सकते हो। You can decompose this symmetric matrix like this, or you can diagonalize this symmetric matrix like this, right, where Q is the orthogonal matrix, and we know कि Q अगर orthogonal matrix है then Q transpose will be, or Q inverse will be equal to the Q transpose, right? So I want to write this symmetric matrix as this form, right? So we can find as usual, and with the determinant is equals to 0, determinant of S minus lambda is equals to 0. From here we see that we have two distinct eigenvalue and these are real. So what we can say about this matrix is symmetric, we have two distinct eigenvalue, then we are guaranteed to get the eigenvector that are going to be the orthogonal eigenvector. So let's see corresponding to lambda is equals to 0. So you can look at this matrix equation and you can solve for this x1, and you will get this x1, that is the first eigenvector corresponding to lambda is equals to 0. Similarly you can do for lambda is equals to 5 and you can get this eigenvector, that is, now if you check these two vector, these are the orthogonal vector, right? इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा, 2 minus 2, right? So that will give you 0, right? These vectors are eigenvectors are orthogonal as expected, जैसा मुझे चाहिए था, but we further we can, what we can do, we can normalize these two vector and we can make these vector as a orthonormal vector. कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं? सिंपली इसके लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे। इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √5। इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा? दैट इज √5। सो नाउ वी हैव दीज टू वेक्टर्स not only orthogonal but their length is also 1. Now we have these two vectors that are orthonormal. So I have this matrix Q now, right? So I can put this matrix Q. So first we can put this vector
Second, we can put this vector, right? So I have this matrix Q, that is the eigenvector matrix, right? So what will be the Q transpose or the Q inverse? So we can easily take the transpose of this. You will have the Q transpose. And what will be this lambda matrix? That is the eigenvalue matrix. So we have this first. So इसको भी लिखना कैसे लिखेंगे हम? देखो पहले मैंने इसको लिया ना, तो ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग था? इस जीरो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के क्रॉसपॉन्डिंग था, राइट? एंड ये 5 जो है ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग था? तो आपको सीक्वेंस में ही रखना होगा, ऐसा नहीं कि इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, ऐसा नहीं। जिस सीक्वेंस में आप इस वेक्टर्स को रख रहे हो उसी सीक्वेंस में इस यहाँ पे जो रखोगे आप उसी सीक्वेंस में, राइट? एंड वी हैव सीन कि डायगोनलाइजेशन इज नॉट यूनिक. So overall point, we have this matrix Q, lambda and Q transpose, right? So that was the example. So we have seen the very important properties of this symmetric matrices. That is all in this video. And yeah, next video we will look at the positive definite matrix and positive semi-definite matrix, and we will not go into much detail, but we will see what are those matrices only, right? Because they are going to come up in your machine learning part, right? So in next video we will see this positive definite matrices.